Hello students, children. Today I am going to read and explain chapter 21 Talaga. But children, before I start this lesson, I show you some keywords. So these keywords help you to understand this lesson better. Historical. Historical means connected with real people or event in the past, जिसे हम ऐतिहासिक भी कह सकते हैं हिंदी में. Ancient. Ancient means belonging to a period of history that is thousands of years in the past. Ancient जिसे हिंदी में प्राचीन कहा जाता है. Ruins. Ruins to damage something so badly that it loses all its value. Ruins जिसे हिंदी में खंडहर भी कहा जाता है. Monuments. Monuments. Oh, sorry, यहाँ n आएगा. An old building or other place that is of historical importance. An old building or other place that is of historical importance. ऐसी बिल्डिंग जिसका एक ऐतिहासिक महत्व हो उसे मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है. Inscription. Words that are written or cut on something. Inscription. Words that are written or cut on something. Inscription से हिंदी में किसी पर कुछ कट कर लिखना इंस्क्रिप्शन कहलाता है. Obtained means to get something जिसे हिंदी में प्राप्त होना भी कहते हैं. Construction. The act or method of building or making something establishment. Construction जिसे हिंदी में निर्माण करना भी कहा जाता है. Idol. Idol means a statue that people treat as a god. Idol means मूर्ति जिसे लोग भगवान के रूप में पूजते हैं. Debris. Debris means pieces from something that has been destroyed. खंडहर के जो अवशेष बचे रहते हैं उन्हें डेब्रिस कहा जाता है. Excavated. Excavated means to dig in the ground to look for old objects or building that have been buried for a long time, to find something by digging in the ways. Excavated खुदाई करके धरती के अंदर से कुछ चीज निकालना एक्सकवेटेड कहलाता है जो काफी सालों से दबा हुआ हो. Carved means to cut wood or stone in order to make an object or to put a pattern writing on it. Carved. किसी पत्थर स्टोन पर खोद कर कुछ लिखना, कुछ गड़ा कर लिखना कार्व्ड कहलाता है. Circumference जिसे हिंदी में परिधि भी कहा जाता है. The distance round a circle or something circular. The distance round a circle or something
सर्कुलर मीन्स कोई सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक की उसका लेंथ सर्कमफ्रेंसेस कहलाता है। इमेजिनेशन, द पार्ट of the mind that uses the ability. Imagination, काल्पनिक, कल्पना शक्ति, the part of the mind that uses the ability. Sculpture, sculpture means the art of making figures or objects from stone, wood, clay, etc. Sculpture जिसे प्रतिमा भी कहा जाता है हिंदी में, किसी स्टोन, लकड़ी या मिट्टी पर कुछ कलात्मक चीज़ें बनाना स्कल्पचर कहलाता है। इंट्रीगल, इंट्रीगल मीन्स इंक्लूड एज अ पार्ट, इंट्रीगल इंक्लूड एज अ पार्ट। प्रोबेबली, ऑलमोस्ट, प्रोबेबली ऑलमोस्ट। Preserving, to keep something safe or in good condition, किसी भी चीज़ को सुरक्षित या बचा कर रखना प्रिजर्व कहलाता है, प्रिजर्विंग कहलाता है। म्यूजियम, म्यूजियम अ बिल्डिंग वेयर कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट एंड शोन टू द पब्लिक। म्यूजियम एक ऐसा स्थान है जहाँ वैल्यूएबल या पुराने समय की या बहुत कीमती चीज़ों को रखा जाता है और लोगों को दिखाया जाता है। द टीचर सेड इन क्लास 4th यू मस्ट हैव रीड अबाउट द caves of Ramgarh. There are many places of historical interest in Chhattisgarh. One of them is Tala Gaon. Today we shall talk about this place. Children, today we shall talk about Tala Gaon because in Tala Gaon two temples, Devrani and Jethani, was built. Arya, teacher, where is Tala Gaon and why is it famous? Teacher, where is Tala Gaon and why is it famous? ताला गाँव, एक चिल्ड्रन है जो टीचर से पूछता है ताला गाँव कहाँ है, कहाँ स्थित है और वो क्यों फेमस है। So teacher says it is 32 kilometers away from Bilaspur. 32 kilometers away from Bilaspur, situated on the banks of river Maniari. Situated on the bank of river Maniari. Though it is like any other village, but there are many ancient temples which are now in the stage of ruins. चिल्ड्रन, ताला गाँव जो है बिलासपुर से 32 किलोमीटर दूर है। यह रिवर मनियारी नदी के पास स्थित है। ताला गाँव क्यों फेमस है? बिकॉज यहाँ बहुत सारे एंशियंट टेम्पल्स हैं जो अब रुइंस हो चुके हैं, खंडहर हो चुके हैं। और आज हम ताला गाँव स्थित दो पुराने टेम्पल देवरानी और जेठानी के बारे में जानेंगे। Does your town, village also have ancient temples or monuments for which it is famous? स्टूडेंट्स, क्या केशकाल में कोई एंशियंट टेम्पल है या कोई मॉन्यूमेंट है? यस, यहाँ गुबरहिन टेम्पल और तेनाली सत्ती माता मंदिर है जो काफ़ी एंशियंट है। इन मंदिरों को दूर दूर से लोग देखने आते हैं और या इन मंदिरों के सौंदर्य का
आनंद लेते हैं। There are two famous temples in Talagaon. There are two famous temples in Talagaon. They are popularly known as Devrani Jethani Temple, Devrani, Devrani, Jethani, Jethani Temple. Looking at the picture given below, can you tell the material used for making these temples? Children, देवरानी जेठानी टेम्पल जो है काफी प्राचीन टेम्पल है जो तालागांव में स्थित है। आजकल जो बिल्डिंग्स बनती हैं या जो टेम्पल्स होते हैं उनमें जो मटेरियल होता है वो पुराने समय में एंशियंट टाइम में जो मटेरियल यूज होता है था उससे डिफरेंट है। सो चिल्ड्रन, आपको ये फाइंड करना है कि तालागांव टेम्पल में को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज किया गया था और वो मटेरियल यहाँ तक ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया उस गांव तक। सो ये सब जानेंगे। टीचर, व्हेन वेयर दिस टेम्पल बिल्ट? As per the information given on the inscription, rocks, they were built some 1500 years ago. Inscription of rock, पत्थरों पर जो कुछ लिखा गया था इंस्क्रिप्शन, उसके हिसाब से यह लगभग 1500 ईयर्स पुराना है ये टेम्पल। रेड सैंडस्टोन was used for making this temple. Red sandstone was used for making this temple. इस टेम्पल के निर्माण के लिए रेड सैंडस्टोन मीन्स रेड कलर का रेतीला पत्थर यूज किया गया था। कीर्ति, टीचर, from where was red sandstone obtained in large quantities? Interestingly, red sandstone is found locally in Talagaon, which is situated on the bank of river Manihari. जो रेड सैंडस्टोन है वो मनियारी नदी के आसपास ही मिलता था, उसी गांव में था, इसलिए इस टेम्पल को इस स्टोन से बनाया गया। How was red sand transported for the construction of temples? रेड सैंडस्टोन को किस प्रकार ट्रांसपोर्ट किया गया? For the construction of temple, the red sandstone will be transported by many people together from the bank of river. लोगों के द्वारा ये जो रेड सैंडस्टोन है इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। Where there trucks and tractors some 1500 years ago, there were no trucks and tractors some 1500 years ago. उस समय कोई ट्रैक्टर और ट्रक नहीं थे। How were big rocks transported from the river to the construction site? How were big rocks को कंस्ट्रक्शन साइट पे कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था? Thousands of people using horses, carts and elephants had transported big rocks from the river to the construction site. बहुत सारे लोग मिलकर हॉर्स, कार्ट और एलिफेंट का यूज करके बड़े रॉक्स को रिवर से कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाते थे। If
such temples were to be constructed in the present, how would the rocks, stones be transported to the construction site? अगर इस समय कोई टेम्पल या बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो मटेरियल कंस्ट्रक्शन साइट तक कैसे ले जाते हैं? एट प्रेजेंट ट्रक्स एंड क्रेन्स कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग रॉक्स to the construction site for building temple at present. ट्रक और क्रेन्स का यूज़ करके मटेरियल्स को कंस्ट्रक्शन साइट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है. नाउ अनन्या फिर पूछती है, टीचर द आइडल ऑफ विच डायटी इज फाउंड इन दिस टेम्पल्स? द टेम्पल्स made in Talagaon are known as देवरानी जेठानी temples. जो तालागांव में जो टेम्पल है उसका नाम देवरानी जेठानी है. Out of the two, the Devrani temple has an idol of Shiva. Earlier, both were Shiva temples. Today, the Jethani temple stands in a complete state of ruins, whereas 2/3 of the Devrani temple is still safe. Being an ancient temple, one can now just see the debris. In the process of clearing the debris, metal coins, idols, etc. were found. A large, wonderful stone idol of Rudra Shiva was also excavated from the site. The idol is unique in itself, as it is different from the idols of Shiva found all over India. बच्चों, अभी जो देवरानी और जेठानी टेम्पल है वो काफ़ी रुग्ण अवस्था में है. जो जेठानी टेम्पल है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन जो देवरानी टेम्पल है उसमें उसका 1/2 पार्ट सेफ है. और जब उसे उन टेम्पल्स को एक्सकवेट किया गया था, खुदाई की गई थी वहाँ, तो वहाँ कुछ कॉइन्स मिले थे और मूर्तियाँ मिली थी. और जो देवरानी टेम्पल है वहाँ जो रुद्र शिवा आइडियल शिवा की जो मूर्ति मिली थी वो काफ़ी यूनिक है, क्योंकि ऐसी कोई भी मूर्ति इंडिया में नहीं है. सिर्फ यही लॉर्ड शिवा की ये मूर्ति है. टीचर, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस आइडियल? महक बोलती है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस आइडियल? दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर आइडल्स ऑफ शिवा. इस मूर्ति में ऐसी क्या स्पेशल बात है जो अन्य मूर्तियों में नहीं है? तो टीचर उन्हें बताते हैं, एज इट इज सीन इन द पिक्चर, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ऑल द फेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इनके जो फेसेस हैं एक दूसरे से डिफरेंट है. एज इट इज सीन in the picture given, this stone idol of Shiva has 10 faces. ये जो आइडल के 10 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Children,
इस मूर्ति में 10 फेसेस है और ऑल द फेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और सभी फेसेस एक दूसरे से डिफरेंट है। ऑन दीज फेसेस देयर आर carved image of a cobra, peacock, chameleon, crab, fish, snake and other such creatures. इस जो आइडियल है इसमें कुछ मूर्तियां उभारी गई है, कार्व की गई हैं एनिमल्स के, जो कोबरा, पीकॉक, कैमेलियन, क्रैब और फिश स्नेक की हैं। इसमें बहुत सारे एनिमल्स के को भी कार्व्ड किया गया है। दिस आइडल इज 9 फीट हाई एंड 4 फीट वाइड। इसकी जो हाइट है वो 9 फीट है और चौड़ाई जो है 4 फीट है। इट्स circumference is about 2.5 feet and weight 5000 kg. इसका जो circumference है वो 2.5 फीट है और वेट जो है अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 5000 kg है। सो चिल्ड्रन, इस रुद्र शिवा में ये क्वालिटी होता है इट इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल स्टोन, और यह एक सिंगल स्टोन में कार्व्ड की गई है। मीन्स इसमें कोई और दूसरे स्टोन लाकर ज्वाइन नहीं किया गया है, ये सिंगल स्टोन में ही कार्व्ड की गई है। सो चिल्ड्रन, व्हाट आर द स्पेशलिटीज ऑफ दिस idol? Idol of Shiva has 10 faces. All the faces are different from each other. On these faces there are carved images है कोबरा, पिकॉक, कैमेलियन, क्रैब, फिश और स्नेक की। इसकी जो हाइट है 9 फीट है और वेट जो है वो 4 फीट है। इसका वेट 5000 किलोग्राम है और यह सिंगल स्टोन पर कार्व की गई है। कृष्णा फिर पूछता है अपने टीचर से, वाई आर द इमेजेस ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स कार्व्ड ऑन शिवास आइडल? डिफरेंट जो क्रिएचर्स हैं उनके जो इमेजेस है क्यों कार्व की गई हैं वो पूछता है। अब आपने जब लॉर्ड शिवा की कोई पिक्चर देखी होगी तो ये इमेज देखी होगी या स्कल्पचर देखा होगा तो देखा होगा उसमें बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। देयर कैन पॉसिबल बिली टू बी 2 रीजन्स। इसके 2 रीजन्स हो सकते हैं। पहले फर्स्टली एज शिवा इज ऑल्सो कॉल्ड पशुपति। शिवा जो है उन्हें पशुपति कहा जाता है। दिस इमेजेस may symbolizes that he is the lord of the creatures. लॉर्ड शिवा को पशुपति भी कहा जाता है। सो चिल्ड्रन, ये इसलिए बनाया गया ताकि ये लॉर्ड शिवा जो है वह क्रिएचर्स के रक्षा करने वाले हैं। With this imagination, the sculpture must have carved out the images of various creatures. Secondly, it could have been to save these creatures who are an integral part of nature. और दूसरा रीज़न ये हो सकता है, अगर भगवान मतलब की मूर्तियों पर इन एनिमल्स के भी इमेज को कार्व किया जाए तो लोग इन एनिमल्स को गॉड समझे और इन्हें ना मारें और ये सुरक्षित हो सके, क्योंकि ये एक नेचर का ये भी नेचर के बहुमूल्य पार्ट है।
Keeping this in mind, the sculpture must have carved out the images of various animals. So children, या तो ये सोचा गया कि भगवान शिव जो है वो उन्हें पशुपति भी कहा जाता है, सो वो ऑल क्रीचर्स के रखवाले हैं। और दूसरा माइंडसेट ये था कि जो एनिमल्स खतरे में हैं उन्हें बचाया जा सके, और यदि भगवान के इमेज पर उनकी इमेज भी कार्व कर दी जाए तो लोग उन्हें गॉड समझेंगे और उन्हें नहीं मारेंगे। So okay students, rest part of the lesson I will continue in my next video. Thank you.